জানে যে লিডারগুলো আমরা চুনে নিজের ভোট থাকে, ওই লিডারগুলো আমাদের গাঁও আমাদের সঙ্গে বসে নাই, আমাদেরকে জানে নাই, আমাদেরকে চিনে নাই, তো সেই জন্য আমাদের সমস্যাওকে জানে না। যদি আমাদের গাঁওকে জানে চিনে নাই, তো আমাদের সমস্যাওকে জানে চিনে নাই। তো সেই জন্য আজকে যত যে ক্যান্ডিডেটগুলো আছে, সোমেশ সরেন থাকে, বাবলুল সরেন থাকে, মুখ্যমন্ত্রী ওদের বাবা মুখ্যমন্ত্রী ছিল, একটার বাবা মন্ত্রী ছিল। তো সেই জন্যে ওদের কাছে সময় আছে নাই কি আজকে আমরা নতুন ছেলে, নতুন পার্টি, আপনি সবাই জানি একটা এমএলএ, কিন্তু যখন আমরা বিধানসভা করে ডিসকাশন করি, সবাই জানি যখন আমরা বিধানসভা ভিতরে ডিসকাস করি কিভাবে ক্ষেত্রের সমস্যাকে আমরা রাখি, তো এইটাই কাজ বটে একটা এমএলএ, যে আমাদের ক্ষেত্রের সমস্যাকে বিধানসভার ভিতর রাখে। কিন্তু আজকে এই রাজার ঘরের রাজা বটে, এরা এই রাজার ছেলে বটে, তো এই আমাদের চিন্তা আমাদের শুধুই নেই। সেই জন্যে আজকে আমরা সবাই আপনার গ্রামে আসে নিয়ে একটা জোরহাত করছে, আপনার সঙ্গে অনুরোধ করছে যে আমাদের যে প্রত্যাশী রামদাস মুর্মু বটে, আর আমাদের প্রমাণ 5 নম্বরে কেজি চাপে আমাদের মন্ত্রণ, আপনি আপনার আশীর্বাদ দিবেন, এইটা আমরা অনুরোধ করতে আছি। আজকে রাজ্যের পরিস্থিতি কি আছে সবাই জানে। এই রাজ্যের মানে কি, এই সংঘর্ষের রাজ্য, এই আন্দোলনের রাজ্য, নির্মল দাদার সহায়তা, এমনি কত পুরুষের সহায়তা, তারপরে আমাদের ঝাড়খণ্ড রাজ্যের নির্মাণ হয়েছে। लेकिन আজকে আমাদের রাজ্যে আমাদের ছেলে চাকরি পাই নাই, আমাদের ছেলে সুবিধা পাই নাই। এই রাজ্যে আজকেও কলকাতার মানুষ, পটনার মানুষ, হায়দ্রাবাদের মানুষ আজকে ভালো কাজ করছে, আর আমরা গ্রামে বসে আছি। জানেন আমাদের লিডারশিপ, যাকে আমরা লিডারশিপ দিয়েছি, এই লিডারশিপের ভিজন নাই, এই লিডারের ভিজন নাই। আজকে ভিজন আপনি দেখতে পারি কি ভিজন কি আছে, ওদের ভিজন আছে কি আমরা মায়েরা মাসিরাকে 2500 টাকা দিব, 2500 টাকা, তো এটা কি ভিজন? ভিজন কি আছে এটা আপনি বুঝতে পারি। আর কোথায় থাকবে পয়সাটা দিয়েছি? বৃদ্ধা পেনশন বন্ধ আছে, বিকলাঙ্গ পেনশন বন্ধ আছে, বিধবা পেনশন বন্ধ আছে, যে আমাদের ঘরের পড়ালেখা করে ছেলে না ওদের স্কলারশিপ বন্ধ আছে, স্টাইপেন্ড বন্ধ আছে। তো আজকে গভর্নমেন্টের ভিজন নাই। তো সেই জন্য আজকে এই যে ঘাটশিলার ইলেকশন আছে, এটা ইম্পর্টেন্ট ইলেকশন। যদি আজকে আমরা গভর্নমেন্টকে একটা সন্দেশ দিব যে আপনি একটা বছর যে আপনি আপনার গভর্নমেন্টে হয়েছি, এই একটা বছর আপনি ভালো কাজ করেন, এটা মন্ত্রীর সিট বলছে। যদি সরকারকে আমরা ছোট দিবেন, তো এটা মেসেজ যাবে যে এরা ভালো কাজ করেছে। আর লোকতান্ত্রিক মানে এইটাই যে জনতা বিচার করে, জনতার হাতে বিচার, কে ভালো কে মন্দ। সেই জন্য আপনার গ্রামে আমরা আসেছে যে এবার আপনার বহুমূল্য মত আমাদের ক্যান্ডিডেটকে আপনি নিয়ে বিধানসভার ভিতর পাঠাবি, এইটাই অনুরোধ করতে আছে। আজকে রাজ্যের স্থিতি পরিস্থিতি, আজকে রাজ্যের ছেলা, রাজ্যের বুজুর্গের, রাজ্যের মহিলা, রাজ্যের পড়ালেখার ছেলার কি স্থিতি সবাই জানে। আজকে আমাদের স্বাস্থ্যের কি স্থিতি কি আছে, আমাদের শিক্ষার স্থিতি কি আছে, আমাদের গ্রামের কি স্থিতি আছে। তো এই জন্য তো আমাদের রাজ্যে আমাদের দেশে ভোটের ব্যবস্থা, ভোটের ব্যবস্থার মধ্যে আমরা আপনার এমএলএ এমপি চুনাव করে নিয়ে ওকে বিধানসভা লোকসভা পাঠায় নিয়ে ওরা আমাদের ডিসকাশন, আমাদের সমস্যাকে ওখানে রাখে নিয়ে আমাদের সমস্যার নিরাকরণ কিভাবে হবে এটা চর্চা পরিচর্চা করে। ঠিক না? যে মানুষগুলো আছে ওরা আমাদের সমস্যা আছে, পরিচয় আছে নেই ওদের। আজকে আপনার কাছে আমরা এটাই অনুরোধ করছি, এবার আপনি সবাই আমাদের সমাজ জানেন। আর সবচেয়ে महत्वपूर्ण बात এইটা বটে কি আমরা সবাই আপনার মধ্যে ছেলে। आपने हमारे घर को देखा होगा, हमारी दादी को भी आप लोग मोबाइल पे देखे होंगे, हम किस घर से आते हैं। तो हम ऐसे साधारण घर से आते हैं, इसीलिए हम समझ पाते हैं कि हमारे लोगों की जरूरत क्या है, हमारे मानुषेर जरूरत। अगर हम भी उनके जैसा बड़े घर से आते हैं तो हमको जरूरत नहीं था ना हम समझ पाते। आज हम आपके जैसा घर से आते हैं, आज हमको सरकार की सैलरी दे दी, आप भी जानते हैं अभी आज के 2 लाख रुपया महीना में मिलता है। हम वो अपना पैसा जो हमको मिलता है अपने खर्चा के लिए, मेरा भी घर परिवार है, हम उसमें भी 75% जनता को, मैंने अपने भाई जो हम पढ़ने लिखने वाले बच्चे हैं भाई बहन, उनको डोनेट करते हैं।
आप लोग देखते हो। इसलिए आज का जो समय है वो चेंजिंग का समय है। आज जो समय है, अगर हम लोग अपने वोट में अपनी लीडरशिप की क्वालिटी में चेंजिंग बदलाव नहीं करेंगे तो वही व्यवस्था चली आएगी। आज चौंपेश्वर बेटा, चौंपेश्वर माने मुख्यमंत्री, पूर्व मुख्यमंत्री, आज के हमारे কাছে যে মন্ত্রী ছিল আজকে নাই, আমি শ্রদ্ধাঞ্জলি দিতে যাই, लेकिन मंत्री तो ছিল। तो आज क्या पर एक माइंडसेट बना है कि भाई जिनके घर में विधायक है, जिनके घर में नेता मंत्री हैं, उन्हीं के घर के लड़के, उन्हीं के घर की लड़कियां विधायक बनेंगे। अगर वही लोग विधायक और नेता बनेंगे, मंत्री बनेंगे, तो जनता की बात कौन करेगी? जनता अगर अपने पीठ से नहीं चुन के भेजेगी तो जनता की बात कौन करेगी? जनता को अपने पीठ से चुनकर भेजना होगा। आज हमारा राज्य आर्थिक रूप से बहुत ही संपन्न राज्य है। हमारे राज्य खूब भालो राज्य, खूब रेवेन्यू, लेकिन हमारे राज्य का पैसा ये लोग केवल और केवल अपनी निजी सुविधा के लिए इस्तेमाल करते हैं। जैसे अभी कुछ दिन पहले आप लोग जानते होंगे कि मुख्यमंत्री के जो बाबा यानी पिताजी सोमगुरु शिबूचरण, उनको भी मैं पहले वंदन करता हूँ। राज्य नेताओं ने आप भी जानते हैं, उनके भोज में 5,000 पर्ची काटा गया। जनता को पूछना चाहता है ये पैसा कहाँ से आया था, कितना, लगभग करोड़ों का खर्च किया गया। आज 10 दिन, मात्र 10 दिन, उससे पहले उनके गांव में बढ़िया सड़क नहीं था, बढ़िया बिजली की व्यवस्था नहीं थी, बहुत सारी जो सुविधा नहीं थी उस गांव में। मात्र 10 दिन, क्योंकि उसको मालूम है पूरा राज्य आएगा इस गांव में, पूरे राज्य के नेता मंत्री आएंगे भोज खाने के लिए। मात्र 10 दिन में गाँव का 10 लोग ठीक कर दिया। तो जब 10 दिन में गाँव को ठीक कर सकते हैं, बढ़िया बिजली, सड़क, पानी की सुविधा दे सकते हैं, तो 25 साल में नहीं दिया जा सकता है क्या? 25 साल में दिया जा सकता है, लेकिन नहीं देने के कारण इनकी सोच है, ये कभी नहीं चाहते हैं। आज देखिए स्कॉलरशिप बंद करके रख दिया है कि बच्चे पढ़ेंगे ही नहीं तो मजदूर का बेटा मजदूर ही बनेगा। अगर ये पढ़ लिख लेंगे तो कल को टिकट का दावेदार करेंगे, कल को राजनीति में आएंगे, तो राजनीति में आएंगे तो हेमंत के बाद पूरा परिवार उनका राजनीति में है। आज आपके कोल्हान में रघुवर दास की पुतोहू राजनीति में है, मधु कोड़ा की पत्नी राजनीति में है, चंपेश्वर का बेटा राजनीति में आई गया है, अर्जुन मुंडा वो भी मुख्यमंत्री, उनकी भी पत्नी पॉलिटिक्स में आ गई है। तो इसीलिए वो कभी नहीं चाहेंगे कि कोई गांव घर का बच्चा आगे बढ़े। और हम लोग गांव घर से आते हैं, आपसे बीच जाते हैं, हम लोग एक नया सोच लेकर आए हैं, नया तरीका लेकर आए हैं। इसलिए हम मानते हैं कि सीट एक ही, वही सीट से कुछ होगा नहीं, ना सरकार गिरेगा ना बिगड़ेगा ना कुछ होने होगा, लेकिन एगो संदेश रहेगा। क्योंकि मंत्री का सीट है, पूरे राज्य में एक मैसेज जाएगा। क्या मैसेज जाएगा कि मुख्यमंत्री ने ठीक काम नहीं किया था, इसीलिए मंत्री का सीट हार गया। तो जनता को ऐसा मौका खोजना चाहिए, जनता को ऐसा मौका खोजना चाहिए कि जब अपना सरकार को अपना वोट उत्तर दे सके। आज नेताओं में जनता के प्रति डर नहीं है। हमारे पड़ोसी देशों में क्या हुआ आपको मालूम है, नेपाल में क्या हुआ, प्रधानमंत्री और मंत्री लोग को वहां का जनता दौड़ा बुला के रोड में पीटा। हम पीटने नहीं बोल रहे हैं, अपना वोट से उनको जवाब दीजिए। अब उनको लाठी डंडा से चोट देने नहीं बोल रहे हैं, वोट से चोट दीजिए। श्रीलंका में क्या हुआ, राष्ट्रपति को भागना पड़ा। बांग्लादेश में क्या हुआ, प्रधानमंत्री को भागना पड़ा। लेकिन हमारे देश में, हमारे राज्य में जनता को गुस्सा आता ही नहीं है, मूलभूत सुविधाओं के लिए जनता को आक्रामकता आती ही नहीं है। इसलिए जनता, हमारे देश, हमारे राज्य की जनता को ये तय करना होगा कि भारत एक लोकतांत्रिक देश है और जनता के हाथ में विचार है कि हम नेता किसे चुने। एक समय था जब हमारे हाथ में विचार नहीं था, उस समय हम लोग पढ़े होंगे, बाबर का बेटा हुमायूं, हुमायूं का बेटा अकबर, अकबर का बेटा शाहजहां। वो हमारा मजबूरी था कि बादशाह वही बनेगा जो बादशाह का बेटा होगा। श्रीगुप्त का नाती चंद्रगुप्त, चंद्रगुप्त का समुद्रगुप्त, समुद्रगुप्त का फिर चंद्रगुप्त विक्रमादित्य। ये हमारा उस समय मानना कि भाई राजा जिसको राजा बनेगा हमको मानेंगे। लेकिन आज मजबूरी नहीं है, आज हमारे हाथ में वोट का विचार है। आज हम जिसे चाहेंगे उसे एमपी एमएलए बनाएंगे। तो जब हमारे हाथ में विचार है तो जनता को विचार करना चाहिए। जब हमारे हाथ में विचार है तो हमें विचार करना चाहिए। ठीक है, तो আজকে এখনো 10টা গ্রামে আমাদের কার্যক্রম আছে, ঘুরে আসবো আপনার বাড়ি, আসবো, সবাই ভালো করে থাকবে, সবাই ভালো করে মিলে নিয়ে মিশে নিয়ে রবে, এটা আমাদের সন্দেশ, আমার মেসেজ আপনার কাছে। और हमारा चुनाव टीम क्या है वो तो आपको जानकारी है, ठीक है।